میرا نام سلمہ ہے. میں کلاس 2 میں پڑھتی ہوں. میں آج آپ کو KPK کے بارے میں بتاؤں گی. KPK کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر پشاور ہے. اس کی صوبائی زبان پشتو ہے اور پشتونی ثقافت کی بنیاد اسلام ہے. KPK کے لوگ شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں. وہاں کابلی پلاؤ چپل کباب جیسے کھانے لوگ شوق سے کھاتے ہیں. 14 اگست تاسو ټولو ډېر مبارک شي. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے. سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے. سندھ کے لوگ اچھے دل کے ہوتے ہیں. جناب علی وقار صدر، میں پاکستانی ہوں اور آج یہ بات میں سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میں اس پاکستان کی ایک آزاد شہری ہوں اور یہ ملک میرا ہے. جناب علی وقار صدر، بچپن میں نے ایک نعرہ سنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ سب باشعور ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور جناب علی وقار صدر، بس مجھے کچھ روز قبل ہی اس بارے میں پتا چلا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ قائد اعظم نے اس دور میں نعرہ بلند کیا تھا کہ جب محض آزادی کا سوچنا ایک خیال تھا. محض ایک خیال تھا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے غلامی ان کی تقدیر تھی. علی وقار صدر کے جب 56 کا آئین بنا تو میں نے ایک عالم کو پڑھا تو ان کے مطابق پاکستان نے اسلام قبول کر لیا ہے. عالم اسلام کی سلامتی کا مضبوط پاکستان، عالم اسلام کی سلامتی کی ضمانت مضبوط پاکستان. علی وقار صدر، 2 ہی ملک ایسے ہیں تاریخ میں، 1400 سال کی تاریخ میں صرف 2 ملک ایسے ہیں کہ جو نہ کسی قبیلے، نسل اور قوم کی وجہ سے بنیاد میں آئے ہیں، صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے بنیاد میں آئے ہیں، مذہب کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. ایک اسرائیل اور ایک شمال مشرق میں واقع پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا، اسلام کا نفاذ. علی وقار صدر، میرے پاکستان میں اور ریاست مدینہ کی ریاست میں بہت ساری چیزیں یکجا ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. سبھی جانتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں بھی ہجرت ہوئی تھی اور علی وقار صدر پاکستان میں بھی ہجرت ہوئی تھی. جب پاکستان بننے لگا تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب آزادی کے دن قریب آ گئے تھے تو کتنے ہی لوگ، یہ آسمان گواہ ہے کہ کتنے ہی لوگ بر صغیر کو، ہندوستان کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے. یہ آسمان گواہ ہے کہ وہاں بھی ہجرت ہوئی تھی اور یہ آسمان گواہ ہے کہ یہاں بھی ہجرت ہوئی تھی. علی جناب صدر، میرا مکالمہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں بھی خون بہایا گیا تھا اور یہاں پاکستان جب بننے والا تھا، تحریک پاکستان کے دوران بھی بہت خون بہایا گیا تھا اور اس وطن کی مٹی گواہ ہے کہ کتنے ہی شہیدوں کی لاشیں گرائی گئی تھیں. علی وقار صدر، میثاق وہاں بھی ہوئی تھی، میثاق یہاں بھی ہوئی ہے. اور علی وقار صدر، ان کے ہاں بھی پڑوس میں کافروں کی مشرکانہ ریاست موجود تھی اور علی وقار صدر، ہمارے پاس بھی کافروں کی، ہندوؤں کی مشرکانہ ریاست موجود تھی. علی وقار صدر، آج لیکن ہم آزاد ہیں. ہم یہ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر، میرا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اگر ہم آزاد ہیں تو ہم سے مراد یہاں پر ہم ہر وہ شخص ہے کہ جو پاکستان کی فضاؤں میں
सांस ले रहा है और पाकिस्तान की फिजाओं में जीता जागता परवान चढ़ रहा है। आली जनाब सदर, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम इस मुल्क के जाले हैं, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम इस मुल्क के बहादुर सपूतों में से हैं, लेकिन आली वक़ार सदर, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि ये मुल्क कायद आज़म की दिन रात की मेहनतों से बना है। इकबाल के ख्वाब को ताबीर की मंजिलों से निकाल कर, इकबाल के ख्वाब को ताबीर की मंजिलों से निकाल कर तामीर की हदों तक लाने वाले शहीदों का खून शामिल है, जानिसारों की वफा शामिल है, और वो सब वाक़यात शामिल हैं कि जब हमारे आबा अजदाद हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो कितनी ही बोगियाँ और कितने ही ट्रेनें लाशों से भर भर कर पाकिस्तान लाई जाती थी, और इस बात को बताते हैं कि कितनी ही माँओं की गोदियों को उजाड़ा गया था और कितने ही औरतों के सुहाग को उजाड़ा गया था। तो आली जनाब सदर, मेरी आवाज़ ये जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है, मेरा पैगाम है इस मुल्क के नौजवानों को कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो, क्योंकि इस पाकिस्तान को हमने बहुत मुश्किलों से हासिल किया है, बहुत मेहनतों से हासिल किया है। हमें पाकिस्तान की खूबसूरती को और चार चांद लगाने और इसकी हिफाजत के लिए हद से गुजर जाना है। एक जगह गया जहां हमारे क्रिकेटर्स सारे आए हुए, उनको दावत दी थी किसी बड़े होटल में, और आपको पता हमारे क्रिकेटर बड़ा ज़बरदस्त काम करके आए हैं। अभी क्या काम करके आए? वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, इंडिया को हरा के आए। असली तो मज़े की बात ये थी ना, इंडिया को हरा के आए। कितने रन से हराया था किसी को याद है? 180। इंडिया को कभी इतने रनों से किसी ने नहीं हराया हो। बड़ा काम किया ना उन्होंने। लेकिन जब वो बच्चे स्टेज पे आए इनाम लेने के लिए, मुझे देख के यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो बच्चे हैं जो इतनी बड़ी स्टेज पे इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के, मतलब हमारे सामने से भी गुजर जाए, हम किसी को नहीं पहचाने। दे वर लाइक एनी अदर 20 ईयर ओल्ड, 20 साल 19 साल के बच्चों की तरह काम ज़बरदस्त करके आए थे। तो मैंने उससे दो सबक सीखे। एक तो ये कि जो काम करने का जज्बा होता है ना, बात उससे बनती है, और मेरे ख्याल में मास्टर यूब से ज़्यादा इससे कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। दूसरी बात जो हमारी पाकिस्तानी कौम को बड़ी ज़रूरत है, डिसिप्लिन। जब करना है तो करना है, भागना नहीं है। हम भाग जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी। जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मेरा ख़ास तौर पे, जो छोटे बच्चे ख़ास तौर पे, आप लोगों से मिलोगे बच्चों तो ये टाई सूट कोट इससे इम्प्रेस नहीं होना। ये सिर्फ पहनने वाली चीज़ है। हम पहन के एक्टिंग करते हैं, मतलब हम क्लास में जाते हैं, लोगों को पढ़ाना तो इसलिए में टाई लगानी होती है। अंदर से हम सब एक ही तरह, हम सब बराबर हैं। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे निकलोगे। अभी हमारे पास पिछले दिनों में दो बड़े अच्छे स्पीकर आए। एक टेलीकॉम कंपनी के थे, दूसरे कहीं और के थे। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में एक कंपनी टेराडेटा कंपनी बड़ा अच्छा काम करती है, वो अलग चीज़। दुनिया भर की जो टेराडेटा की कंपनीज हैं 15-20 मुल्कों में, उसका टेक्निकल काम पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान में करते, सारी दुनिया को सपोर्ट करते। इसी तरह टेलीनॉर में भी 50-60 बच्चे हैं, उनको ये एहसास हुआ दुनिया वालों को कि पाकिस्तान में लोग काम वही कर सकते हैं जो दुनिया वाले करते हैं, और कम दामों पे कर लेते हैं। सो दे आर डूइंग दैट, देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान चल रहा है। मेहनत रखो, लगन रखो। लोगों ने बड़ी अच्छी तकरीरें की कायद आज़म के अल्लामा इकबाल की, जाहिर है वो बड़े बड़े रोल मॉडल थे करने वाली। लेकिन हम सब के लिए ये चीज़ है, हम रहते हुए हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइज वेरी गुड थिंग्स। थैंक यू फॉर डूइंग ए ग्रेट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग। आप लोग सही लोगों को बुलाया, मोर पावर टू यू।
करते रहे, अच्छी बात। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा इस चीज़ की मशहूरी ज़्यादा करें ताकि और भी लोगों को थोड़ी गैरत हो ये काम करने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़िज़ा आसिफ एंड आई हेड द कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम एट बेरिया यूनिवर्सिटी। आज हमने मास्टर अयूब साहब और लेटेस्ट बी किड्स के बच्चों के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारा लिटरेसी प्रोग्राम्स चल रहे हैं बेरिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें बच्चे रोज़ आके पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स इनको पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। सो आज हमने उस सिलसिले में आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस की हैं। इट वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट बाय आवर स्टूडेंट वॉलंटियर्स। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट वॉलंटियर्स हु gave their best to this program and did the efforts for today. Thank you very much. God bless Pakistan. हमारी यूथ की ये ड्यूटी है कि हम इन बच्चों को आगे लाएं और पढ़ाएं, क्योंकि तालीम हम सब के लिए और तालीम हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आज़ादी मुबारक। Happy Independence Day, which is a very rare occasion because you never know when it's going to come back again. So I wish you all a very good Independence Day and I hope you enjoy the day to the best of its possibility. CSP का बहुत अच्छा एक इवेंट था जो कि मेरी फ्रेंड मैम फ़िज़ा ने अरेंज किया है, और हमें चाहिए कि हर 14 अगस्त पे हम अपने घर से निकल के ये इवेंट सेलिब्रेट करें और उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो कि लाइक स्ट्रीट किड्स हैं, और हम अपनी आज़ादी को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं बस आज के दिन और यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि जैसे आज हमने अरेंज कराया बच्चों के लिए 14 अगस्त का एक इवेंट है, इंडिपेंडेंस डे रिगार्डिंग इवेंट है। सो आई वुड इनकरेज एवरी स्टूडेंट हु इज़ करेंटली वाचिंग दिस राइट नाउ एट देयर होम और समवेयर एल्स कि प्लीज़ आप कम्युनिटी स्पोर्ट क्लब या कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम्स में जितना हेल्प हो सके वो करें। और बिसाइड ऑफ देयर 40 आवर्स कम्युनिटी वर्क इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर ओन ग्रूमिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन दिस क्लब एंड जॉइन CSP। थैंक यू सो मच। मास्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने जो सा ये काम एक अच्छा काम स्टार्ट किया, इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखें जी, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश करके अपने इस पाकिस्तान को रंग दिया बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी कौम जो सोती हुई देखी गई, ताकि उन लोगों को, उन बच्चों को जगाया जाए कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था और पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हमने क्या बनना है। लेकिन ये गरीब गुरबा बच्चे जिनको दबा दिया गया है, कुछ बताया नहीं गया, उसके लिए उठाऊं वलवला लेकर, ताकि इन बच्चों को बताऊं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, हमने पाकिस्तान में क्या करना है, हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए क्या कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए पुलिस बनेंगे, फौज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ताकि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। और तरक्की तभी करेगा हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इल्म फैलाएं। जब इल्म फैलाएंगे तो मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। 14 अगस्त के हवाले से आपको मैसेज देना चाहिए? 14 अगस्त के हवाले से यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग घर में बैठ के बहुत बातें कर लेते हैं कि ये मसाइल है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, लेकिन हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी खुद पूरी करनी है। हम सब बाहर निकलें, इन बच्चों का साथ दें, इनको पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि हर चीज़ में अगर आप देखेंगे उसकी जड़ तक जाएंगे तो सोल्यूशन उसका आपको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन मिलेगा। इन बच्चों को एजुकेट करें, इन बच्चों को वो फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करें जो आप अपने बच्चों को देते हैं। इसी तरह हम लोग पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। आपको बेरिया यूनिवर्सिटी में आके मज़ा आया? मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया और मैं अगले साल भी जब होगा यहाँ पे तो मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मैं यूनिवर्सिटी पहले मैं बहुत ख्वाहिश थी आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे तरह के होते रहे इवेंट। बहुत बेहतरीन इवेंट था और बहुत खुश हूँ मैं सब। वतन तुम्हारा